Hello everyone. Today we will start module 2, and in module 2 first of all we will discuss about the classification of second order linear partial differential equation. How to classify the second order linear partial differential equation. Consider a differential equation of second order in two independent variable x and y, a times del 2u over del x square plus b times del 2u over del x into del y plus c times del 2u over del y square plus some function of x by u del u over del x and del u over del y is equal to 0. This is my equation number 1. And where a, b and c are constant or continuous function of x and y having continuous partial derivative and is पॉजिटिव. एबीसी क्या है हमारे? एबीसी या तो मेरे कांस्टेंट होंगे या कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे किसके? एक्स और वाई के, हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एंड ए इज पॉजिटिव. नाउ हियर थ्री केसेज आर अराइजेस. फर्स्ट वन इज if b square minus 4ac is less than 0, then equation is elliptic, yani the nature of equation 1 is elliptic. Second one is if b square minus 4ac is equal to 0, then equation is parabolic. And third one is if b square minus 4ac is greater than 0, then equation is hyperbolic. Basically the nature of the equation is decided by b square minus 4ac. That means when the b square minus 4ac is less than 0, that means negative, then the nature of the equation is elliptic. When b square minus 4ac is 0, that means the nature is parabolic, and b square minus 4ac greater than 0, that is positive, then the equation is hyperbolic. If a, b and c, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि if a, b and c are given if a, b and c in given equation are constant, then the nature of the equation will be same in the whole region. यानी a, b, c यदि मेरे कांस्टेंट हैं तो जो इक्वेशन है उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट होगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x and y. But in another case, if a, b, c and are function of x and y and given equation, then the nature of the equation 1 will not be same in the region. That means for all value of x and y. कहने का मतलब है कि यदि a, b, c मेरे क्या हो जाएंगे, यदि फंक्शन होंगे x, y के, तो क्या होगा? जो नेचर होगा वो रीजन, हर रीजन में क्या होगा? चेंज होगा. That means for all value of x and y, the nature is not same. Now, here we have some questions. Classify the following equation: del 2u over del x square plus 4 times del t over del x del t plus del t over del t is equal to 0. Here a is 1, b is 1, c is 1. That's why b square minus 4ac, this is minus 3 less than 0. Equation is elliptic. Second time 4 times del t over del x square, 4 times del t over del x del t plus del t over del t square is equal to 0. Age 4, b is 4 and c is 1. That's why b square minus 4ac is 0. The nature of the equation is parabolic. And 5 times del t over del x square minus 9 times del t over del x into del t plus 4 times del t over del t square is 0. b is minus 9, a is 5 and c is 4. That's why b square minus 4ac is 1 greater than 0. That's when the nature of the equation is hyperbolic. Now, in this problem, classify the equation x square times del 2u over del t square minus del t over del x square plus u is equal to 0. Here a is x square, b is 0 and c is minus 1. Therefore, v square minus 4ac is 4x square. And this is always greater than 0, whatever the value of x. And either x is positive or x is negative, this is b square minus 4ac is always greater than 0. That's why this is hyperbolic. But if x is equal to 0, then it is पैराबोलिक. देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो ये हाइपरबोलिक होगा, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? पैराबोलिक हो जाएगी. अभी मैंने बताया था कि इफ
x ABC are the function of x and y, then its nature is changes. Again t टाइम डेल टी ओवर डेल टी स्क्वायर, नोटेशन चेंज हो सकता है, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. t टाइम डेल टी ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम डेल टी ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस x टाइम डेल टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल x इज इक्वल टू 0. तो here b is 2, a is t and c is x. So b square minus 4ac is 4 minus 4tx. If x is 0, then b square minus 4ac is greater than 0. That means nature is hyperbolic. If t is equal to 1 and x is equal to 1, then this becomes parabolic. If t is less than 0 and x is greater than 0, then b square minus 4ac is hyperbolic. If t is less than 0 and x is less than 0, then b square minus 4ac is elliptic. Here we will discuss the case for each and every variable. Clear? You are requested to solve this question. X square time del t over del x square plus t time del t over del x into del t plus del square u over del t square is 0. Second one is under root y square plus x square uxx plus 2 times x minus y uxy plus under root x square plus y square into uyy is 0. Now the second topic of this unit is method of separation of variable, which is the most important method. इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will assume that u जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, this is the product of two solution x and t. What this method convert? This method convert the partial differential equation into ordinary differential equation. Look at here. Use the method of separation of variable, solve the equation. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे क्वेश्चन जरूर आता है. आगे जो हम हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे वहां भी इनका यूज होगा. डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2 टाइम डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू. इसको हमें सॉल्व करना है और कंडीशन है u ऑफ x, 0 इज 6 टाइम e की पावर माइनस 3x. दैट u इज इक्वल टू x इंटू टी, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो u है तो और x और t के हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हम सबसे पहले क्या करें, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट के रूप में यूज किया. लेट u इज इक्वल टू x इंटू टी बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखिए यहाँ कौन कौन से डेरिवेटिव है, एक तो डेल यू ओवर डेल एक्स है, एक डेल यू ओवर डेल टी है. सबसे पहले हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला टेकिंग t एज अ कांस्टेंट. तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x इंटू टी, तो t टाइम्स डेल x ओवर डेल x. And del u over del t is nothing but del over del t of xt, x times del t over del t. Substituting these values in the given equation, तो t times del x over del x plus 2 times x into del t over del t plus u, और u क्या हमारा x into t लिख देंगे. हमने इसको हम क्या लिखना है, t into x dash is equal to 2 times x into t dash plus u, और अगली लाइन में हमने क्या लिखा है, u को xt. तो हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया है. x वाले वेरिएबल एक तरफ है, t वाले वेरिएबल हमारे एक तरफ है. तो t टाइम्स x डैश इज इक्वल टू x कॉमन लिया, 2 टाइम्स t डैश प्लस t. तो x डैश बाई x इज इक्वल टू 2 टाइम t डैश बाई t प्लस t बाई t, यानी x डैश बाई x इज इक्वल टू 2 टाइम t डैश बाई t प्लस 1. दैट इज सम कांस्टेंट. हियर आई विल एज्यूम माइनस p स्क्वायर. यू कैन एज्यूम प्लस p स्क्वायर. इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशन. तो x डैश बाई x इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया. डेल x बाई डेल x इज इक्वल टू p स्क्वायर x. दिस बिकम्स dx by x is equal to p square dx. Integrating both sides, तो log x is equal to p square x plus log c1. Taking anti-log on both sides, तो x is equal to c1 times e की पावर minus p square x. Similarly दूसरे वाले पार्ट को लिया, 2 times t dash by t plus 1 is equal to minus p square. तो 2 times t dash by t is equal to minus p square minus 1. माइनस कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस 1. तो डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 डी टी. तो लॉग टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 टी टू लॉग सी टू. इंटीग्रेट किया था हमने, टी की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 टी इंटू सी टी. यूजिंग 2 and 3 सेकंड 3 and 4 मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हमने क्या किया था, यू इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, और x की वैल्यू हमें मिल गई, t की वैल्यू मिल गई हमें. तो c1 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, c2 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 टी. तो u ऑफ एक्स टी कितना हो जाएगा, c1 इंटू सी टी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू टी. और u ऑफ एक्स जीरो क्या है, 6 टाइम ई की पावर माइनस 3x. c1 इंटू सी टू इक्वल टू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स. कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, c1 इंटू सी टू क्या हो जाएगा 6 एंड पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3. ओके, पी स्क्वायर कितना हो गया 3.
Hence from equation 5 u of x t is 6 टाइम e की पावर माइनस 3x माइनस 2t, यानी उसकी वैल्यू रख दी हमने c1 c2 के, तो u of x t is equal to 6 टाइम e की पावर माइनस कॉमन ले ले 3x plus 2t. Now the same question is use the method of separation of variable solve this equation. तो यहाँ हमने x और y है, u डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट, u is equal to x into y, del u over del x निकाला, del t over del x स्क्वायर निकाला, del u over del y निकाला, del t u over del x स्क्वायर निकाला. इक्वेशन को सॉल्व किया और सेम हमने फिर यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद जब हमने वेरिएबल को सेपरेट किया तो सेपरेट करने के बाद हमारा आया एक्स डैश बाई एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर. तो एक्स डैश एक्स डबल डैश माइनस 2 टाइम्स एक्स डैश बाई एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर. तो एक्स डबल डैश माइनस 2 टाइम्स एक्स डैश इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स, इसको हमने सॉल्व किया. और यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद में जो हमारी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओडी में कन्वर्ट हुई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इट बिकम डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस पी स्क्वायर है. दिस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इसको हमने क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसके रूट्स निकाले, m की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस दिस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर. तो से रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस c2 पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स. ये राइट हैंड साइड इज 0, दैट्स वाई पी आई 0. तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई. दैट मीन्स c1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस c2 e की पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स. ये x की वैल्यू हो गई. फ्रॉम टू y देखो माइनस वाई डैश बाई वाई इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो वाई डैश इक्वल टू पी स्क्वायर वाई, तो डेल वाई ओवर वाई, डेल वाई इक्वल टू पी स्क्वायर वाई, तो डेल वाई ओवर वाई पी स्क्वायर डी वाई, तो लॉग वाई इक्वल टू पी स्क्वायर वाई प्लस लॉग सी टू, तो वाई इक्वल टू सी टू प्लस ई की पावर पी टू पी स्क्वायर वाई. u इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो u कितना होगा, c1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस c2 e की पावर ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू c3 e की पावर पी स्क्वायर वाई. होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा.